وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ 1. کثرت غم اور ہر وقت ماضی کی تلخیوں کو یاد کرنا، یہ ذہنی تناؤ خلیات کو تیزی سے ختم کرتا ہے۔ 2. نیند کی کمی اور راتوں کو دیر تک جاگنا، جسم کی مرمت نیند میں ہوتی ہے، جو نہ ملے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ 3. حسد اور اندرونی بے سکونی، دوسروں کی خوشی دیکھ کر کڑنا انسان کی اپنی توانائی کو کھا جاتا ہے۔ 4. بچاؤ، شکر گزاری، وقت پر نیند اور معاف کرنے کی عادت اپنائیں، اب طویل عرصے تک جوان نظر آئیں گے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص اب سے نظریں چرا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 1. وہ شخص اب سے کچھ چھپا رہا ہے، اب سے جھوٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نظریں نہیں ملا پا رہا۔ 2. اسے اپنی کسی کہی ہوئی بات کیے ہوئے عمل پر شرمندگی ہے اور وہ اب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ 3. وہ اب کی شخصیت سے مروب ہے، اب کے سامنے خود کو کمتر محسوس کر رہا ہے، اعتماد کی کمی۔ 4. اسے اب کی کسی بات سے شدید اختلاف ہے، مگر وہ احترامنا مصلحتنا بول نہیں رہا اور نظریں پھیر لی ہیں۔ وہ کون سے 4 جملے ہیں جو اب کی خوشحال زندگی کو ایک لمحے میں برباد کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ انسان کو اپنے خوابوں کا گلا گھونٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 2. میری تو قسمت ہی خراب ہے، ناشکری کے یہ الفاظ اب کے پاس موجود نعمتوں کی برکت بھی اڑا دیتے ہیں۔ 3. میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، بدلے کی آگ پہلے اب کے اپنے سکون کو راکھ کرتی ہے۔ 4. کل سے شروع کروں گا، کام کو ٹالنے کی عادت انسان کو کامیابی کی دوڑ میں سب سے پیچھے کر دیتی ہے۔ وہ کون سے 4 نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اب کا مخلص دوست ہے مطلبی؟ 1. مخلص دوست اب کی غیر موجودگی میں اب کی عزت کا دفاع کرتا ہے، جبکہ مطلبی دوست وہاں خاموش رہتا ہے۔ 2. مخلص دوست اب کی غلطی پر اب کو تنہائی میں ٹوکتا ہے، جبکہ مطلبی دوست دوسروں کے سامنے اب کا مذاق اڑاتا ہے۔ 3. مشکل وقت میں مخلص دوست بغیر بلائے حاضر ہو جاتا ہے، جبکہ مطلبی دوست بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 4. مخلص دوست اب کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے، جبکہ مطلبی دوست کے چہرے پر حسد صاف نظر آتا ہے۔ اگر اب کو رات کو بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا روحانی اور نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے؟ 1. نفسیاتی طور پر اب دن بھر شدید ذہنی دباؤ کسی ایسے خوف میں مبتلا ہیں جس کا آپ نے سامنا نہیں کیا۔ 2. روحانی طور پر اب کے ارد گرد منفی توانائی ہے، اپنے سونے سے پہلے مسنون اذکار آیت الکرسی نہیں پڑے۔ 3. بدہضمی، کبھی کبھی پیٹ کی خرابی، سونے سے فوراً پہلے بھاری کھانا بھی خوابوں میں بے چینی لاتا ہے۔ 4. حل، باوضو ہو کر سوئے، بستر جھاڑیں اور اپنے ذہن کو مثبت سوچوں کے ساتھ پرسکون کر کے آنکھیں بند کرے۔ وہ کون سی ایسی نیکی ہے جو انسان کو اللہ کے غصے سے بچاتی ہے اور حادثات کو ٹال دیتی ہے؟ 1. چھپا کر صدقہ دینا، حدیث کے مطابق خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ 2. دکھی انسانیت کے لیے دعا کرنا، جب آپ دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی بلائی ٹال دیتا ہے۔ 3. والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی دعا ایک ایسی ڈھال ہے جو آپ کو ہر ناگہانی آفت سے بچاتی ہے۔ 4. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، رشتوں کو جوڑنا عمر میں برکت اور حادثات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ 1. مسلسل آنکھیں ملانا، یہ انسان کے پر اعتماد ہونے اور سچ بولنے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ 2. بار بار پلکیں جھپکانا، یہ ذہنی دباؤ، بے چینی کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 3. آنکھوں کو سکیڑ کر دیکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر شک کر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ 4. نیچے دیکھ کر بات کرنا، یہ اکثر شرمیلے پن احساس کمتری کی علامت ہوتا ہے، مگر کبھی یہ عاجزی بھی ہوتی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کے گھر سے برکت کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں؟ 1. گھر میں کثرت سے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا، جھوٹ رزق کی برکت کو کھا جاتا ہے۔ 2. رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور ان کی حق تلفی کرنا، یہ عمل آسمانی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ 3. سود کا پیسہ حرام مال گھر میں لانا، حرام مال آگ کی طرح ہوتا ہے جو سکون اور برکت دونوں کو جلا دیتا ہے۔ 4. حل، رزق حلال کمائی، رشتوں کا لحاظ رکھیں اور زبان کو سچ کا عادی بنائیں، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا تو اپنے اندر 4 تبدیلیاں لائیں۔ 1. پہلے خود سے پیار کرنا سیکھیں، جب آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا بھی آپ کو عزت اور اہمیت دے گی۔ 2. توقعات ایکسپیکٹیشنز کم کر دے، انسانوں سے امیدیں لگانا ہی دکھ اور اکیلے پن کا سبب بنتا ہے۔ 3. دوسروں کو دینا سیکھیں، چاہے وہ مسکراہٹ ہو وقت جب آپ پیار بانٹیں گے تو پلٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا۔ 4.
अल्लाह से लो लगाए, याद रखे कि जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब भी वो ज़ात आपके साथ होती है। 1. क्या आपकी मेहनत सही समत में है? कभी कभी हम गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। 2. सब्र का इम्तिहान। अल्लाह कभी कभी अता करने से पहले बंदे के सब्र को आजमाता है ताकि इसे बड़ी नेमत के काबिल बना सके। 3. नियत का इखलास। चेक करें कि क्या आप ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, इसमें खैर का कोई पहलू भी है। 4. दुआ की कमी। मेहनत के साथ अल्लाह से मुसलसल मदद मांगे, क्योंकि मेहनत जिस्म करती है और कामयाबी अल्लाह देता है। वो कौन से 4 इशारे हैं जो बताते हैं कि आपका ज़मीर अभी जिंदा है? 1. जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आपको फौरी तौर पर बेचैनी महसूस होने लगे और आप तौबा की तरफ माइल हों। 2. जब आप किसी के साथ ज्यादती करे तो आपका दिल मलामत करे और आप मुआफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए। 3. जब आप किसी ज़रूरतमंद को देखे तो आपके दिल में हमदर्दी पैदा हो, चाहे आप इसकी मदद ना भी कर सके। 4. जब आपको अपनी कामयाबी से ज्यादा दूसरों की हक तलफी पर दुख हो तो समझ ले आपका ज़मीर बेदार है। नफ्सियात के मुताबिक किसी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत डालने के 4 जादुई तरीके। 1. अच्छा सामे लिसनर बने। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी बात तवज्जो और अहमियत से सुनते हैं। 2. सामने वाले को इसके नाम से पुकारे और इसकी छोटी छोटी खूबियों की सच्ची तारीफ करे। 3. जरूरत के वक्त बगैर कहे मदद के लिए पहुंच जाए। अमली हमदर्दी अल्फाज से ज्यादा असर रखती है। 4. अपने चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कुराहट रखे। मुस्कुराहट दिलों के बंद दरवाजे खोलने की कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जो आपकी उदासी को खुशी में बदल सकता है? 1. शुक्रगुजारी। जब आप उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो आपके पास हैं तो दिमाग खुशी के सिग्नल भेजता है। 2. वुजू करना। ठंडे पानी से वुजू करना असाब को पुरसुकून करता है और मनफी लहरों को खत्म कर देता है। 3. किसी छोटे बच्चे के साथ वक्त गुजारना। बच्चों की मासूमियत और हंसी डिप्रेशन का कुदरती इलाज है। 4. सजदे में लंबी दुआ। जब आप अपना बोझ अल्लाह के सामने डाल देते हैं तो दिल हल्का और पुरसुकून हो जाता है। वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए? 1. अपने बड़े मंसूबे और मकासद। जब तक वो पूरे ना हो जाए उन्हें खुफिया रखे ताकि नज़र बद से बच सके। 2. अपने घर के निजी मामलात और झगड़े। घर की बातें बाहर बताने से लोग हमदर्दी के बजाय तमाशा देखते हैं। 3. अपनी नेकियां और सदकात। नेकी को छुपाना इसके अजर को कई गन्ना बढ़ा देता है और रियाकारी से बचाता है। 4. याद रखें, राज तब तक आपका कैदी है जब तक वो आपके सीने में है, बाहर निकलते ही आप इसके कैदी बन जाते हैं। अगर आपको अपनी शख्सियत पर एतमाद नहीं है तो ये 4 मशकें आपको ताकतवर बना देगी। 1. अपनी कामयाबियों की एक लिस्ट बनाए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और उन्हें रोज देखे। 2. डर का सामना करे। जिस काम से डर लगता है इसे बार बार करे यहां तक कि डर खत्म हो जाए। 3. अपनी जिस्मानी जुबान बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त करे, सीधे खड़े हों और नजरें मिलाकर बात करे। 4. अपने बारे में मनफी बोलना बंद करे, खुद को बताएं कि मैं ये कर सकता हूं और अल्लाह मेरे साथ है। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा आने पर आपके जिस्म में क्या खतरनाक तब्दीलियां आती हैं? 1. गुस्से के दौरान दिमाग से ऐसे जहरीले मादे खारिज होते हैं जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा देते हैं। 2. आपकी सोचने समझने की सलाहियत आर्जी तौर पर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप गलत फैसले कर बैठते हैं। 3. गुस्सा आपके मुदाफियती निज़ाम को कमजोर कर देता है, जिससे आप जल्दी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। 4. हल। गुस्सा आने पर फौरन पानी पीन, जगह बदल ले या खामोश हो जाए, आप एक बड़ी जिस्मानी और ज़हनी आफत से बच जाएंगे। वो कौन से 4 काम हैं जो रात को सोने से पहले आपकी किस्मत बदल सकते हैं? 1. अपना एहतिसाब करे। सोचें कि आज क्या अच्छा किया और क्या बुरा, और बुरे काम पर मुआफ़ी मांगे। 2. दूसरों को मुआफ़ करके सोए। इस अमल से आपको पुरसुकून नींद आएगी और अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। 3. वुज़ू की हालत में सोए। बावुज़ू सोने वाले के लिए फरिश्ते पूरी रात मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 4. कल के कामों की मंसूबा बंदी करे, इससे आपका अगला दिन मुनज़्ज़म और बाबरकत गुजरेगा। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है आपकी तहक़ीर करता है तो इसे कैसे हैंडल करे? 1. मुस्कुरा कर जवाब दे। आपकी मुस्कुराहट सामने वाले के वार को बेकार कर देगी और इसे शर्मिंदा कर देगी। 2. बहस में ना पड़ी। जाहिल से बहस करना अपने वक़ार को कम करना है, बस सलाम कहकर आगे बढ़ जाए। 3. अपनी कामयाबी को अपना जवाब बनाएं। जब आप बुलंदी पर पहुंचेंगे तो नीचे खड़े लोग खुद ही खामोश हो जाएंगे। 4. याद रखें, हाथी जब चलता है तो बहुत से जानवर शोर मचाते हैं, मगर वो अपनी मस्त चाल नहीं छोड़ता।
वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इंसान को कभी वापस नहीं मिलते? 1. बोला हुआ लफ्ज, जुबान से निकली बात कमान से निकले तीर की तरह है जो वापस नहीं आ सकता। 2. गुजरा हुआ वक्त, जिंदगी की हर घड़ी कीमती है, इसे जाय करने के बाद दुनिया की पूरी दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। 3. टूटा हुआ एतबार, भरोसा एक शीशे की तरह है जिसमें एक बार दरार आ जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। 4. सबक, हमेशा सोच कर बोले, वक्त की कदर करे और कभी किसी का एतमाद ना तोड़े। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहे तो उन 3 हकायक को जान ले। 1. अल्लाह आपकी दुआ को इसी वक्त कबूल कर लेता है और वही देता है जो आपने मांगा, अगर वो आपके हक में बेहतर हो। 2. अल्लाह इस दुआ को आपके लिए ज़ख़ीरा कर लेता है और इसके बदले में कोई आने वाली बड़ी बिला टाल देता है। 3. अल्लाह इसे आखिरत के लिए बचा लेता है, जहां इसका अजर देखकर आप तमन्ना करेंगे कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना होती। 4. यकीन, अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लूटता, बस इसका देने का तरीका हमारे सोचने से मुख्तलिफ है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपके चेहरे की रौनक और नूर को खत्म कर देती हैं? 1. कसरत से झूठ बोलना, झूठ से चेहरे की सच्चाई और नूर गायब हो जाता है। 2. हर वक्त दूसरों के ऐब तलाश करना और गीबत करना, ये अमल बातिन के साथ जाहिर को भी बदसूरत बना देता है। 3. रातों को फजूल कामों में जागना और फजर की नमाज कज़ा करना, सुबह की बरकत से महरूमी चेहरे को बेरौनक करती है। 4. दिल में नफरत और कीना पालना, अंदरूनी गिलाजत चेहरे के तासुरात को तल्ख और बेनूर बना देती है। अगर आप अपनी औलाद को कामयाब और नेक बनाना चाहते हैं तो उनके सामने ये 4 काम कभी ना करें। 1. उनके सामने कभी झूठ ना बोले, वरना वो आपको अपना रूल मॉडल मानना छोड़ देंगे। 2. उनके सामने अपने शरकन हयात, बीवी या शौहर की बुराई ना करे, इससे उनके दिल में रिश्तों का एहतराम खत्म हो जाता है। 3. उनके सामने किसी का मजाक ना उड़ाए, वरना वो बदतमीज और बेहिस बन जाएंगे। 4. उनके सामने हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, वरना वो अब से दूर और टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 3 अमल हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं? 1. कुरान पाक की तिलावत की आवाज, वो घर खुश नसीब है जहां सुबह सवेरे ये आवाज गूंजती है। 2. गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करने वाले के रोने की आवाज, ये आवाज अर्श मोल तक सुनी जाती है। 3. अल्लाह की राह में हक के लिए पुकारने वाले की आवाज। 4. अजर, उन आवाजों से अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इंसान के लिए बख्शिश के फैसले होते हैं। अगर आपको रिस्क में तंगी महसूस हो रही है तो अपने घर में उन 4 जगहों को चेक करें। 1. क्या आपके घर में कूड़ा करकट आ गंदगी जमा रहती है? सफाई ईमान का हिस्सा है और बरकत लाती है। 2. क्या आपके घर में पानी ज़ाय होता है? पानी का ज़िया भी बेबरकती का सबब बनता है। 3. क्या आपके घर के दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आकर खाली हाथ पलट जाता है? 4. क्या आपके घर में परिंदों या चींटियों के लिए कोई दाना डाला जाता है? याद रखें, बांटने से रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता। वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी सोहबत से आपको फौरन निकल जाना चाहिए? 1. वो जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने आपकी भी करेगा। 2. वो जो हर वक्त मायूसी फैलाते हैं और आपको आपके ख्वाबों से डराते हैं। 3. वो जो आपको अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं और गुनाहों की तरगीब देते हैं। 4. वो जो सिर्फ आपके फायदे के वक्त आपके साथ होते हैं और जरूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब में पानी देखना क्या मानी रखता है? 1. साफ और बहता हुआ पानी, ये ज़हनी सुकून, खुशहाली और नई शुरुआत की अलामत है। 2. गदला आ रुका हुआ पानी, ये जज्बाती उलझन, परेशानी आ किसी अंदरूनी खौफ की तरफ इशारा करता है। 3. समंदर की लहरें, ये जिंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों आ ताकतवर जज्बात की निशानी है। 4. प्यास लगना और पानी ना मलना, ये किसी ऐसी अधूरी ख्वाहिश की अलामत है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इंसान के ईमान को लूट लेती हैं? 1. तकब्बुर, जब इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है तो ईमान की हलावत खत्म हो जाती है। 2. हिर्स और लालच, ज्यादा की हवस इंसान को हलाल और हराम की तमीज से आरी कर देती है। 3. दिखावा, रियाकारी, जब नेकी अल्लाह के बजाय लोगों के लिए की जाए तो वो नेकी ईमान को मजबूत करने के बजाय बर्बाद कर देती है। 4. बचाओ, आजिज़ी अपनाई, जो मिला इस पर शुक्र करे और हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे। अगर आप एक पुरसुकून नींद चाहते हैं तो अपने बिस्तर पर जाने से पहले ये 4 काम करें। 1. अपने दिल को तमाम लोगों की तरफ से साफ कर ले और सबको मुआफ कर दो। 2. 3 बार इस्तिग़फ़ार करे ताकि दिन भर की कोताहियां मुआफ हो जाए।